am going to discuss about small intestine, that the next part of alimentary canal. तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ क्या कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ elementary canal. Okay, the longest part of your small intestine, elementary canal is small intestine. Now see बच्चे, what it is said about small intestine? It is say that कि जो लेंथ है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है ना वो वैरी करता है. ठीक है, दैट इन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. और ये बोला जाता है कि जो हर्बीवोरस है उसमें इसका लेंथ जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस. रीज़न इज़ दैट कि हर्बीवोरस को जो है वो डाइजेस्ट कराना है ग्रास, और ग्रास में प्रेजेंट क्या होता है सेलुलोज. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कराना ये इजी नहीं होता है, ये काफ़ी टफ होता है. इसीलिए क्या कि हर्बीवोरस जो भी आपके एनिमल्स हैं उसमें इसका लेंथ क्या है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस. तो ये चीज़ आप याद रखना कि हर्बीवोरस में जो लेंथ है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस. Reason is that it has to digest grass and grass is used to contain cellulose. Okay, so if I have to compare herbivorous and carnivorous, what it is say that in herbivorous, okay, that length of small intestine is larger because it has to digest grass and grass contains what cellulose. You will write that grass it contains what cellulose. So it is very tough to digest cellulose. That's why the length of a small intestine it is larger in herbivorous as compared to carnivorous. Clear it is? Now next we have to discuss about small intestine in the human beings. Okay, that what will happen when the food it is passed from, okay, when it has come into the small intestine, you know that it has mixed with the gastric juice, your food it gets acidified. Okay, and even it is also used to release enzymes like pepsin help in the digestion of the protein, even it also help in the digestion of the fat. And what it is said that na कि when the food it is mixed into the small intestine with the gastric juice, actually it is used to form chyme. एक word मुझे use करना था chyme. Okay, that I am using here chyme. Chyme क्या होता है कि जो भी आपका फूड, ठीक है, आपका जो फूड है और आपका गैस्ट्रिक जूस ये मिक्स होता है ना, तो जाके ये क्या करता है आपका chyme का फॉर्मेशन करता है. Okay, so what it is say that कि when that chyme, okay, it is formed into small intestine, now it will become into small intestine. Now it has to transfer into the small intestine. So what it is said that कि your small intestine, okay, small intestine it is divided into 3 parts. Okay, now listen बच्चे. So what it is said about a small intestine, that your small intestine it is divided into 3 parts. Okay, first is what duodenum, second is jejunum, and third is what ileum. Okay, so first part that it is called duodenum na, actually that duodenum it is in C-shaped. Okay, remember that it is C-shaped, and the shortest part, okay, that it is the shortest part of small intestine. So what happens कि firstly that when the food it has to reach into the small intestine, it will reach firstly into this part that it is called the duodenum, and the duodenum is what it is C-shaped. Okay, and it is called what shortest part of the small intestine. Then after it will pass into jejunum. Okay, and it is said that कि the length of that jejunum that it is around 2 meter. So it is just used to give the passage, okay, of whatever the food it has come into the duodenum. Okay, finally what will happen, that food it will reaches into what ileum.
Okay, so maximum absorption of food, it will takes place in this one, the part that it is called what? Ileum. So it is the last part of this small intestine. So you will say that the first part, that it is called the duodenum, it is C-shaped, it is the shortest part of the small intestine. Then after it will pass into the jejunum, it is around 2 meter long. Okay, you will see that it is 2 meter long, and from that jejunum it will pass into where, that it is in the ileum. Okay, so in the ileum, that it is the maximum, always remember that, maximum absorption of food. Okay, that maximum absorption of food, it is taking place in ileum. Now see bache, how that food it is just digested in a small intestine, that I have to discuss now. So what it is said that ki whatever the food it is coming from the stomach, okay, they are in the form of the chyme. I had told you that it is mixing with the gastric juice. Okay, now it is coming into that small intestine. So first part, it is what? It is the duodenum. Okay, so it will come firstly in the duodenum. Now what will happen now? Ki you know that ki this alimentary canal is also helped with the help of two associative glands. Okay, that one is what? Liver, and another is what? Pancreas. So whatever the food it is coming into the duodenum, okay, then after it is said ki it is just mixed with that juices, that it can be secreted by that associative gland. Means that whatever the juice it is secreted by the liver, whatever the juice it is secreted by the pancreas, it will mix into that duodenum. Clear it is? Means that ki final digestion of food, it has to take place in this small intestine. Clear it is? So what it is said that ki in the duodenum, okay, that associative gland, I had told you that your digestive system, okay, it is divided into two parts. One, that is the alimentary canal system, and another is what? That is the associative gland. Clear? So in that of the associative gland, na, actually what I am discussing, even I have to write associative. I will discuss later about them in the detail, but right now you have to know कि that associative gland, okay, that it is two. That one is what? That it is liver, and second is what? Pancreas. Clear? Liver, it is used to secrete bile juice. Remember, okay, that bile juice, it is secreted from the liver. Bile juice, it is secreted from the liver, and pancreas, it is used to secrete pancreatic juice. Okay, remember firstly pancreatic juice. So that of the juice, actually it is said कि whatever it is secreted by the liver, secreted by the pancreas, that it will mix with the food, that it has come into that duodenum part. Clear? Then after it is said that कि finally, actually what it is said that na कि liver, bile juice, okay, pancreas, pancreatic juice, so they are actually helping in the complete digestion of the food. So food, it is completely digested into the small intestine. So how it is digested, now I am going to discuss about them. Okay, so see bache, I am rubbing this one. See, food, it has come from the stomach na. So here I am writing food, okay, that it has come, and the food, it is acidic in nature. Remember that it has come from the stomach. Now it has come into the small intestine. So what happens ki that food, okay, it is also mixed with two different type of the juices. Okay, one, it is secreted by the liver, and another it is secreted by what? Pancreas. Pancreas. Clear? Try to understand that liver, it is used to secrete, okay, bile juice. It is used to secrete bile juice. Very important. Okay, so bile juice is what? It is said that na कि the nature of bile juice is alkaline. Okay, most important thing, that the nature of bile juice, it is alkaline. Alkaline medium. It is used to provide alkaline medium to the food. Okay, and second thing, it is said that na कि this bile, okay, this bile juice, where it is stored. Okay, so you will say that कि this bile juice ना, it is stored in gall bladder. Stored, देखो, secrete करना दूसरी बात, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, रहना दूसरी बात. तो bile juice जो है ना, stored होता है gall bladder में. बहुत confusion होता है यहाँ पे
कि सीक्रेट कौन कराता है और स्टोर कौन कराता है। याद रखना कि स्टोरेज का काम कराता है गॉल ब्लेडर और सिक्रेशन कौन करवाता है, लीवर कराता है। ठीक है, सो यू विल से दैट कि बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लेडर एंड लीवर इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। एंड द नेचर ऑफ बाइल जूस इज व्हाट, इट इज अल्कलाइन। व्हाट इट इज, अल्कलाइन। रिमेंबर, थर्ड थिंग इट इज से दैट ना कि ये जो बाइल जूस है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, बाइल सॉल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंटेन करता है आपका बाइल सॉल्ट। ठीक है, पता है ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, एक्चुअली ये बाइल सॉल्ट जो है ना, ये आपका जो फूड आया, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि आप जो खाना खाते हो तो उसमें सारे आपके न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपके फूड में अगर फैट है तो फैट को कौन डाइजेस्ट कराएगा, तो फैट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कौन करता है, आपका ये बाइल जूस, जिसका नेचर कैसा होता है बताओ, अल्कलाइन, एंड इट इज कंटेनिंग व्हाट, बाइल सॉल्ट। ठीक है, अब पता है ये बाइल सॉल्ट क्या करता है कि फैट का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट इज द बाइल सॉल्ट, इट इज used to break down the large molecule of fat into smaller molecules. Okay, or in short you can say that ना कि इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ठीक है, ये जो हमने लिखा कि इट इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। रिमेंबर, ओके, दैट इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसको आप ग्लोम्यूल्स भी बोल सकते हो, ऑफ द फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोम्यूल्स। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द emulsification. Clarity? So what I said, I am saying that function of the liver, that liver actually it is used to produce what, bile juice. Bile juice nature is alkaline, it is stored in gallbladder. Okay, bile juice it also contains what, bile salt. Bile salt it is used to break down the large molecule of fat into the smaller molecules, and that process is called what, emulsification. Clear it is? Now see बच्चे, what it is said है कि लीवर का काम क्या, बाइल जूस को रिलीज़ करके फूड को अल्कलाइन करना। लेकिन आप ये बताओ ना कि जो फूड आपका जो स्टमक से आ रहा है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। ये जो आपका बाइल जूस रिलीज़ कर रहा है उसका नेचर कैसा है, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन का मतलब क्या है, इन शॉर्ट आप समझो बेस। तो अगर आपका एसिड और बेस अगर कंबाइन होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बनेगा ना। तो याद रखना, अब आपका जो फूड जैसे ही बाइल जूस के साथ मिक्स होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा आपका, अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ना ही वो एसिडिक, ना ही क्या वो बेसिक, ना ही अल्कलाइन आप बोलो। ठीक है, वो क्या हो गया, अब आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक, फूड जो है आपका क्या है, आप देखो फैट जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपका ब्रेक डाउन हो गया। अब बारी किसकी, पैंक्रियाज की। पता है पैंक्रिया क्या करता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, ध्यान से समझना। ठीक है, पैंक्रिया का काम क्या कि पैंक्रिया जो है पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करेगा। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। पैंक्रियाटिक ये क्या करेगा, ये रिलीज़ कराएगा पैंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ना, ये क्या करता है कि अपने पास एंजाइम्स को रखता है। ठीक है, तो एक्चुअली पैंक्रिया जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैंक्रियास। तो क्या कहता है कि पैंक्रिया जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है ना, ये आपके फूड में प्रेजेंट जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं,
एक्टिव होगा? पता है, जो लीवर क्या किया है, बाइल जूस को रिलीज करा के जो उसके पास बाइल सॉल्ट था, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कराया ना, फाइनली उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इसको क्या करना है, कंप्लीट डाइजेशन कराना है। तो उस पर ये आपका जो लिपेज है ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप समझ लो कि जो लिपेज है ना ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ भाई, तो जो आपका जो बाइल जूस, ठीक है, याद रखना, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके जो स्मॉल फैट को रखा है ना, ये इसके ऊपर क्या होगा, ये लिपेज एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या करेगा कि ये लिपेज उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को क्या करेगा, जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट जो आपका किससे, जो बाइल जूस जो उसको ब्रेक डाउन करके उसको रखा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा है, उसके ऊपर क्या करेगा, ये लिपेज एक्टिव हो जाएगा और फाइनली इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट, क्या करा देगा, डाइजेस्ट। तो याद रखना लिपेज का काम क्या है, इसका मेन काम है डाइजेशन ऑफ फैट। वो भी कौन सा फैट, जिसको बाइल जूस जो अपने पास बाइल सॉल्ट को कंटेन कर रखा था, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया है, उसको फाइनली क्या करेगा, ये डाइजेस्ट। अब बारी किसकी, ट्रिप्सिन की। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रिप्सिन है ना, ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन, मैं बात कर रही हूँ ट्रिप्सिन की, तो याद रखना कि जो ट्रिप्सिन है आपका, ठीक है, ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिप्सिन क्या करेगा कि जो आपके फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है ना, उसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो याद रखना ट्रिप्सिन का काम क्या है, टू डाइजेस्ट, बोलो किसको, प्रोटीन। ठीक है, याद रखना ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कि जो भी आपके अब फाइनल फूड में प्रोटीन है सबको क्या करेगा, कंप्लीट डाइजेस्ट करके उसको ब्लड में चेंज करने में हेल्प करेगा। मतलब कंप्लीट डाइजेशन, आप समझो कि यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा, कुछ भी नहीं बचेगा, जो कुछ भी आपका फैट है, प्रोटीन है ना, सब आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा और सिंपलर फॉर्म में ये टूटेगा। अब अगर बात करें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेगा, पैंक्रिया अमाइलेज को रिलीज करेगा और आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करेगा, फाइनली शुगर में क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये जो है क्या, ये आपका जो जूस है ये आपका कौन रिलीज करता है, पैंक्रिया। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कहाँ जा रहा है, ये आपका ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यूडेनम में जैसे ही फूड आया तो ये दोनों जो है आपका एसोसिएटिव ग्लैंड, पैंक्रिया और जो आपका कौन, लीवर, ये क्या किया, अपने अपने जूस को वहाँ पे उसमें ड्रेन करा रहा है। ठीक है, अब ड्रेन कराने के बाद क्या है, दोनों अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, पहले कोई तोड़ा, फिर क्या कर रहा है, दूसरा उसके ऊपर एक्टिव करा रहा है, फिर इसको कंप्लीट क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। फाइनली आपका फूड क्या हो गया, डाइजेस्टेड। तो लास्ट हमने क्या बोला कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, देखो मैंने क्या बोला कि जो आपका स्टेप्स है न्यूट्रिशन का, उसमें क्या है, इंजेशन, फिर क्या भाई, डाइजेशन, फिर क्या, एब्जॉर्प्शन। तो अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन जो है, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। पता है जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ जो फूड है ना, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब में होगा। ठीक है, और पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्यूब है ना, इसके पास स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है विलाई। क्या बोलोगे आप बताओ, विलाई। ठीक है, अब क्या कि देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले से चलो विलाई को बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे डिओडेनम, फिर जेजेनम, फिर क्या है, इलियम। तो इलियम में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए जाएगा। तो अगर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए जा रहा है तो कैसे वो एब्जॉर्ब होगा, तो याद रखना क्या करा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ना, उस पर क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या बोलोगे आप, फिंगर लाइक क्या, प्रोजेक्शन, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्या, विलाई, and villi help in the maximum absorption of the food. Remember, it helps in absorption of food. ठीक है, फाइनली फूड क्या एब्जॉर्ब हो गया।
अब ये कहाँ मिक्स होगा, ये ब्लड में, ठीक है। तो जो भी आपका जो ब्लड स्ट्रीम है ना, देखो विलाई क्या किया, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, याद रखना, फूड को एब्जॉर्ब कराएगा, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, याद रहे, सरफेस एरिया को क्या करता है, ये इंक्रीज कराता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा कि अब वो एब्जॉर्ब होके फाइनली मिक्स कहाँ करेगा, ब्लड में, ठीक है। याद रखना, अब फूड क्या हो गया, एब्जॉर्ब, और मिक्स कहाँ करेगा भाई, मिक्स करेगा, मिक्स विथ ब्लड। पता है ये ब्लड में मिक्स होने के बाद जाएगा कहाँ, ये अब यहाँ से ना जो भी ब्लड आपका उठ के जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है, अब वो जाएगा कहाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और वो जाएगा लीवर में, क्योंकि लीवर का काम क्या है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है फूड में उसको क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई। तो आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड कहाँ जाएगा, जो भी आपका ब्लड न्यूट्रिशन को कैरी करके लेके जा रहा है वो लीवर में जाएगा, और फूड में जो भी प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई। तो ये आपका काफ़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम है वो सी शेप का होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड आपका स्टमक से ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम जो है आपका कनेक्टेड होता है आपका 2 डक्ट के साथ, ठीक है, एक है लीवर, दूसरा क्या है, पैंक्रिया। ये चीज़ याद रखना, लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस को रिलीज़ कराता है, और जो भी आपके फूड में प्रेजेंट फैट है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है। पैंक्रिया का काम क्या है, पैंक्रेटिक जूस को रिलीज़ करना। इस जूस में क्या है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, आपका ट्रिप्सिन, आपका लिपेज। तो लिपेज जो है वो एक्टिव होगा किसके ऊपर, फैट के ऊपर, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर, अमाइलेज जो एक्टिव होगा वो किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा कौन, ट्रिप्सिन, फैट को डाइजेस्ट कौन कराएगा, लिपेज, और कार्बोहाइड्रेट को कौन कराएगा बताओ, कौन, अमाइलेज, ठीक है। तो फाइनली क्या, फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब कराएगा इलियम वाले पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या कहता है कि हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका जो वॉल है इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोला जाता है विलाई। विलाई का मेन काम क्या है कि सरफेस एरिया को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करेगा, ठीक है। फाइनली क्या कि ब्लड में मिक्स होने के बाद फूड जो है वो कहाँ पहुँचेगा, आपके लीवर में। थैंक यू सो मच।